Hello class 10th. Today I'm teaching you the same story. How much land does a man need? Part 2. We'll continue with the same story. As soon as Peckham and his family reached their new abode, he put up the buildings he needed and bought cattle. Peckham जैसे ही अपने परिवार को लेकर नई जगह पर पहुंचा, उसने बहुत सारी नई बिल्डिंग्स खरीद ली और नया पशुधन खरीद लिया. He now had 3 times as much as at his former home and the land was good corn land. अब उसके पास पहले से 3 गुना बड़ा घर था और उसकी जो ज़मीन थी वो भी बहुत उपजाऊ थी. He was 10 times better off than he had been. पहले से वो 10 गुना बेहतर हो गया. He had plenty of land and could keep as many head of cattle as he liked. बहुत सारी ज़मीन उसके पास हो गई. जितना चाहता वो पशुधन अपने पास रख सकता था. Peckham was pleased with it all, but when he got used to it, he began to think that even here he had not enough land. पहले तो Peckham को ये सब बहुत अच्छा लगता रहा, पर जब Peckham को इन सब चीज़ों की आदत होगी, अब उसे ये चीज़ें भी कम लगने लगी. The first year he sowed wheat on his land and had a good crop. पहले साल उसने अपनी ज़मीन पर गेहूँ बोया और उसको बहुत बढ़िया फसल मिली. After a time, Peckham noticed that some peasant dealers were living on separate farms and were growing wealthy, and he thought, if I were to buy some more land, it would be different thing altogether. The question of buying more land recurred to him again and again. कुछ देर के बाद पेखॉम ने नोटिस करा कि उसके जो साथी किसान हैं वो खुद अलग जगह पर रहते हैं और उन्होंने अपने लिए बहुत बढ़िया फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं और वो दिन रात धनवान हो रहे हैं. अब उसे लगने लगा कि उसे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए. अब उसके सामने ये प्रश्न आ गया कि वो और ज़मीन कैसे खरीदे. सो Peckham began looking out for land which he could buy. Peckham ने अपने लिए और ज़मीन देखनी शुरू कर दी कि वो उसको कहाँ खरीदे. And he came across a peasant who had bought 1300 acres but having got into difficulties was willing to sell again cheap. उसे एक किसान मिला जिसने 1300 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, पर वो उस ज़मीन को बेचना चाहता था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आ गई थी. Peckham bargained and haggled with him, and at last they settled the price at 1500 rubles, part in cash and part to be paid later. Peckham ने उसके साथ थोड़ा सा मोल भाव किया और उसको ज़मीन बेचने के लिए राज़ी कर दिया. 1500 रूबल्स जो थे वो 1 एकड़ लैंड के, कुछ हिस्सा उसको कैश में देना था और कुछ उसका बाद में पे करना था. They had all but clinched the matter when a passing dealer happened to stop at Peckham's one day to get a feed for his horses. ये सब कुछ जब होने ही वाला था तभी Peckham को एक ऐसा डीलर मिला जो वहाँ से गुजर रहा था और घोड़े की फीड लेने के लिए रुका था. He drank tea with Peckham and they had a talk. दोनों ने इकट्ठे चाय पी और बातचीत करी. The dealer said that he was just running from the land of the Bashkirs far away where he had bought 13,000 acres of land all for 1,000 rubles. उसने डीलर ने उसको बताया कि वो वहाँ से भी निकल रहा था तो उसे बशकीरों की ज़मीन दिखी जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है और वो वहाँ पे 1300 एकड़ लैंड जो है वो सिर्फ 1000 रूबल में खरीद सकता है. Peckham questioned him further and the tradesman said. अब Peckham उसको आगे सवाल करता गया और वो व्यापारी उसको जवाब देने लगा. All one need do is to make friends with the chiefs. कहते वहाँ और कुछ नहीं करना. Peckham बशकीर्स के जो चीफ हैं उनके साथ दोस्ती करनी है. I gave away about 100 rubles worth of silk robes and carpets besides a case of tea, and I gave wine to those who would drink it, and I got the land for less than a penny an acre. And he showed Peckham the title deeds saying. उसने Peckham को बताया कि उसने चीफ्स के पसंद के सिल्क के कपड़े, कालीन, बढ़िया चाय और जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए बढ़िया वाइन, ये सब चीज़ें उसने उन बशकीरों को दी है और उसको पैनी से भी कम के मोल में वहाँ पे एकड़ ज़मीन मिली है. उसने Peckham को वो कागज़ पत्र भी दिखाए जिसमें उसने ज़मीन का मोल भाव किया था. The land lies near a river and the whole prairie is virgin soil. कहते हैं कि जो ज़मीन है वो नदी के किनारे है और सारी प्रेरी मतलब जहाँ पे घास लगी होती है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है. Peckham piled him with questions and the tradesman said. Peckham ने उस पर प्रश्नों की बाढ़ लगा दी, जड़ी लगा दी और व्यापारी कहता है there is more land there than you could cover if you walked a year.
एंड इट ऑल बिलोंग्स टू द मशकीज़। कहते उनके पास बहुत ज़मीन है, तुम एक साल में जितना चल के ज़मीन कवर कर सकते हो वो सब बशकीज़ की है। दे आर एज सिंपल एज शीप एंड लैंड कैन बी गॉट ऑलमोस्ट फॉर नथिंग। कहते हैं वो शीप से भी ज़्यादा, शीप जैसे साधारण लोग हैं और तुम कितनी भी ज़मीन चाहो वहाँ खरीद सकते हो। देयर इज़ मोर लैंड थॉट पैकॉम विद माई 1000 रूबल्स, वाई शुड आई गेट ओनली 1300 acres and settle myself with the debt besides? If I take it out there, I can get more than 10 times as much for the money. बशकीर सोचने लगा कि वहाँ पर तो बहुत ज़मीन है, अब मैं यहाँ पर अगर 1300 रूबल्स की ज़मीन खरीदता हूँ और उसके बाद मैं उधार भी मेरे को चुकाना पड़े तो बढ़िया है कि मैं वहाँ जाकर जितनी ज़मीन चाहे वहाँ खरीद सकता हूँ। पैकॉम लेफ्ट हिज वाइफ टू लुक आफ्टर द होमस्टेड एंड स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी टेकिंग द ट्रेड्समैन विद हिम। पैकॉम ने अपनी पत्नी को घर की देखभाल करने के लिए छोड़ा और उस व्यापारी को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। On and on they went until they had gone more than 300 miles, and on the 7th day they came to a place where the Bashkirs had pitched their tents. It was all just as the tradesman had said. अब जब उन्होंने चलना शुरू किया तो पैदल 300 मील की दूरी तय करके आ गए और 7वें दिन वो उसी जगह पर पहुँचे जहाँ बशकीर्स रहते थे और उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए थे। उस व्यापारी ने जैसा ही बताया था पैकॉम को वही सब देखने को मिला। As soon as they saw Peckham, they came out of their tents and gathered round their visitor. जैसे ही उन्होंने पैकॉम को देखा, वो बशकीर्स थे, वो सारे के सारे अपने टेंट में से निकल आए और उसके आसपास आकर उसे देखने लगे। An interpreter was found and Peckham told them that he had come about to have some land. इंटरप्रेटर मतलब जो भाषा का अनुवाद करता है। एक इंटरप्रेटर ढूंढा गया। अब वो पैकॉम की सारी बात समझकर अपने बशकीरों को समझाता और बताता कि ये ज़मीन खरीदने के लिए आया है। द बशकीर सीम्ड वेरी ग्लैड। बशकीर्स बहुत खुश हुए। दे टुक पैकॉम एंड लेड हिम इनटू वन ऑफ द बेस्ट टेंट्स। वो अपने सबसे बढ़िया टेंट में पैकॉम को ले गए। वेयर दे मेड हिम सेट ऑन सम डाउन कुशंस प्लेस्ड ऑन ए कारपेट। वहाँ पर कालीन पर बहुत बढ़िया कुशंस बिछाए हुए थे। उन्होंने पैकॉम को वहाँ बिठाया। वाइल दे सैट अराउंड हिम, और ख़ुद उसके आसपास बैठ गए। दे गेव हिम सम टी एंड क्यूमिस एंड हैड अ शीप स्केल किल्ड एंड गेव हिम मटन टू ईट। उन्होंने उसको चाय, क्यूमिस और मटन खाने के लिए दिया। पैकॉम टुक प्रेजेंट्स आउट ऑफ हिज कार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग द बशकीर्स। पैकॉम भी अपने साथ जो तोहफे लाया था उसने वो बशकीर्स में बांट दिए। एंड डिवाइडेड द टी अमंग्स देम, और चाय भी उनमें बांट दी। द बशकीर्स वर डिलाइटेड। They talked a great deal among themselves and then told the interpreter to translate. उन्होंने बशकीर्स भी ये सब चीज़ें लेकर बहुत खुश हुए। उन्होंने इंटरप्रेटर को सारी डील समझा दी और उनको बोला कि इसको ट्रांसलेट कर दे। They wish to tell you, said the interpreter, sorry, that they like you and that it is our custom to do all we can to please a guest and to repay him for his gifts. You have given us presents. Now tell us which of the things we possess. Please your best that we may present them to you. इंटरप्रेटर ने बताया कि बशकीर्स कहना चाहते हैं कि वो तुम्हारे से बहुत खुश हैं, जो भी तुम उनके लिए लाए हो उनको बहुत पसंद है और जो वो कुछ तुम्हें पेश कर रहे हैं वो उनका कस्टम है, वो उनका रिवाज है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ हमारे पास है जो वो तुम्हें पेश करें और तुम खुश हो जाओ। What pleases me best here, answered Peckham, is your land. Our land is crowded and the soil is exhausted. But you have plenty of land and it's good land. I never saw the like of it. पैकॉम कहता है कि मुझे जो बड़ी चीज़ आपकी सबसे बढ़िया लगी है वो आपकी ज़मीन है। हमारी ज़मीन पे बहुत भीड़ भाड़ है और जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो गई, पर आपकी ज़मीन मुझे बहुत बढ़िया लग रही है और मुझे ये खरीदनी है। पैकॉम immediately fetched the best dressing gown and 5 pounds of tea and offered these to the chief. पैकॉम ने जल्दी से बहुत बढ़िया एक गाउन निकाला, ड्रेसिंग गाउन निकाला और बढ़िया क्वालिटी की 5 पाउंड चाय निकाली और चीफ को पेश की। द चीफ accepted them and seated himself in the place of honor. The Bashkirs at once began telling him something. The chief listened for a while, then made a sign with his head for them to be silent, and addressing himself to Peckham, said in Russian, "Well, let it be so. Choose whatever piece of land you like. We have plenty of it."
अब जब बशकीज़ ने उनके चीफ को बहुत सारे तोहफे दिए तो वो चीफ बहुत खुश हो गया। वो भी बशकीज़ के पैकॉम के सम्मान में उसने उसको भी बढ़िया जगह पर बिठाया और चीफ कुछ देर तो उसको अच्छे ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने अपने सिर से इशारा किया कि वो चुप हो जाए और उसने पैकॉम से कहा कि ठीक है, तुम अपनी पसंद की ज़मीन चुन लो, हमारे पास बहुत ज़मीन है। एंड व्हाट विल बी द प्राइस पैकॉम आज पैकॉम ने पूछा कि ठीक है, उसकी कीमत क्या है। आवर प्राइस इज़ ऑलवेज द सेम 1000 रूबल्स अ डे। पैकॉम डिड नॉट अंडरस्टैंड। चीफ ने कहा कि हमारा प्राइस तो सेम ही है, एक दिन का 1000 रूबल। पैकॉम को समझ नहीं आई। अ डे, व्हाट मेजर इज़ दैट, हाउ मेनी एकर्स वुड दैट बी। कहता एक दिन, ये क्या माप हुआ, मैं एक दिन में कितने एकड़ खरीद सकता हूँ। वी डू नॉट नो हाउ टू रेकन इट आउट, सेड द चीफ। वी सेल इट बाय द डे, एज मच एज यू कैन गो राउंड ऑन योर फीट इन अ डे इज़ योर्स एंड द प्राइस इज़ 1000 रूबल्स अ डे। चीफ कहते हैं हमें नहीं पता कि हम ज़मीन कैसे मैयर करते हैं, पर हम इसे दिन के हिसाब से बेचते हैं। तुम एक दिन में अपने पैरों से चलकर जितनी ज़मीन मापोगे वो सारी तुम्हारी हो जाएगी और उसकी प्राइस 1000 रूबल्स होगी। पैकॉम वॉज सरप्राइज्ड। बट इन अ डे यू कैन गेट अराउंड अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ही सेड। कहते पर तुम एक दिन में बहुत बड़ा ट्रैक जो है ज़मीन का वो हासिल कर सकते हो। द चीफ लाफ्ड, चीफ हंसा। इट विल बी ऑल योर्स, सेड ही, but there is one condition: if you don't return on the same day to the spot whence you started, your money is lost. कहते हैं हाँ, वो सारी ज़मीन तुम्हारी होगी, पर एक ही शर्त है, जिस जगह से तुम ज़मीन से नापनी शुरू करोगे तुम्हें शाम तक उसी जगह पर वापस आना है, नहीं तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। पैकॉम वॉज डिलाइटेड। इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। पैकॉम बहुत खुश हुआ। उसने फैसला किया कि वो अगली सुबह ज़मीन नापनी शुरू करेगा। दे गेव पैकॉम अ फेदर बेड टू स्लीप ऑन एंड द बशकीज़ डिस्पर्स्ड फॉर द नाइट। बशकीज़ ने पैकॉम को बहुत बढ़िया बिस्तर सोने के लिए दिया और ख़ुद वहाँ से चले गए ताकि पैकॉम आराम कर सके। दैट्स ऑल फॉर द डे क्लास 10th. रीड योर स्टोरी and go through your question answers. Thank you so much.